welcome back students to standard 10th chemistry chapter 2 acid bases and salts part 3. All right, okay. Well, I had one query from yesterday's session. All right, Swayam asked me this: nitric acid plus zinc gives salt, nitric oxide and water. And the reason I said is this HNO3 is strong oxidizing agent, or you can say strong oxidizing acid. And that is the reason why it oxidizes hydrogen as well as nitrogen. Nitric acid oxidizes itself as well. So hydrogen reacts with oxygen to produce water, and nitrogen reacts with oxygen to produce nitric oxide. All right? Okay. But then I gave you one extra example here. It's not given in the textbook. Same nitric acid, when reacts with sodium metal, gives sodium nitrate and hydrogen gas. Perhaps I have written water here yesterday's session, but it's not water. I don't know whether I have made that correction or not, but it is hydrogen, because normally the property of acid is acid reacts with metal to produce salt and hydrogen gas. Correct? So again वही यहाँ लागू पड़ गया, acid, metal, salt and hydrogen, but with sodium. Now Swayam's question was, why with sodium it is not giving you nitric oxide and not even water here, correct? Though the same HNO3 is highly oxidizing acid, तो इसमें क्यों नहीं? Very simple children. If आपको याद हो तो activity series of metals K, Bana, Kamams, Fanny, TL, Heiko, Message, ये एक्टिविटी सीरीज है. अब ये दोनों को देख लो, सोडियम जिंक HCl, sodium HCl. So sodium is highly reactive and zinc is falling in the middle order of reactivity. So that may be the one difference. दूसरी बात, ये HNO3 dilute है या concentrated है. In these two forms, their reactions also would be different. So Swayam, I would like to ask you one question. You are one person, but how is your behavior with your mother? How is your behavior with your father? How is your behavior with your brother or sister? How is your behavior with teacher? How is the behavior with principal? How is your behavior with your friends? Alright? Last but not the least, how is the behavior with, yes, your friend, girlfriend, whom you love very much? Okay? So the behaviors are all different. Correct? Your behaviors are all different with different people. स्वयं तो एक ही है, लेकिन behavior अलग है. ऐसा possible है ना? उसी तरह, yes, this acid reacts differently with different metals. समझ में आया? Well, उसकी बहुत डेप्थ में स्टडी करनी हो तो आपको उसको डिटेल में स्टडी करना हो, और वो 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो gradually you will learn in 11th and 12th standard. I cannot teach you or answer those questions. Well, and basically I am not a chemistry teacher, I am a maths teacher. Alright, so I may not have knowledge, but I would appreciate and inspire to ask this type of questions. The reason, I can search on Google and get everything for you, but then there is one limitation. I can't teach you all those things here, and you are going to learn in future. This is not important for your exam, board exam. Correct? ये question नहीं आने वाला है क्योंकि ये book में नहीं है. Here, why I wrote, what was the purpose behind giving you this example?
कि आप कुछ भी नहीं लिख दे। मैंने कहा ना, वो वर्ड समझाया, फिजिबल। ये कोई भी इक्वेशन या रिएक्शन फिजिबल होना चाहिए। आप यहां ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो लिख दो यहां वो नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O मिलेगा। नहीं, सभी के साथ नहीं। I hope you understood. All right, you can keep asking me such questions. मैं ऐसी छोटी सी सादी भाषा में आपको समझा दूंगा, right? And if you, I have sent one video to you, chemical properties of nitric acid. इसकी chemical properties के बारे में एक वीडियो भेजा है मैंने from YouTube, correct? So you can see that if you want to study in detail. All right, fine. एक दूसरी बात, I think one girl asked me when we did revision sessions, but I forgot. मुझे याद आया. According to her, she says ये aqueous लिखते हैं, ये solid लिखते हैं, ये aqueous, ये गैस है, ये लिक्विड है। सर वो कैसे पता चलेगा? How to write those states, solid, liquid और गैस? Alright, okay? आसान है। दूध, milk, in what state it exists? Liquid. Petrol, liquid. Alright? Apple, solid. Alright? Carbon dioxide, gas. Oxygen, gas. क्योंकि आपको याद है, आपको पता है, इसके बारे में आपने कहीं सुना है, कुछ चीजें देखी है, so you know whether they are in solid, liquid or gas state. ये चीजें आपने सुनी नहीं है, आप पहली बार सुन रहे हैं। ओके, एक बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊं, see, make the best use of the cell phone that you are using. Instead of watching other videos on YouTube, you watch these videos. Hydrochloric acid. Let me see the picture of it or video of it, and you will see that is liquid. All right. Let me take this nitric oxide gas. वो देखते हैं तो it is colorless gas. All right. आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ले लोगे तो वो येलोइश ब्राउन कलर है या रेडिश ब्राउन कलर है, आइदर येलोइश ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर है, येलोइश ब्राउन या रेडिश ब्राउन। फिर वो आप मुझे पूछेंगे कि सर ये क्यों कलरलेस है और ये क्यों रेडिश ब्राउन है? जो है वो है। Are you getting me? So yeah, but still I can help you little bit here. See, if any metal is there, then they are in solid state except mercury. Non-metals exist in all states. If you talk about solid non-metals, they are phosphorus, carbon, all right, sulfur. And gas में बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलियम, नियोन, आर्गन, और लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन एक ही है, करेक्ट? सो ये आपको याद रखना है। और जो एसिड लाइक HNO3 ले लो या कोई भी, बेस लेट्स टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, और सॉल्ट लेट्स टेक NaCl सोडियम क्लोराइड, जब वो रिएक्टेंट में होते हैं, reactant, when they are in reactant, they are always aqueous. They are always aqueous. जब reactant में होते हैं कोई भी salt, base या acid, when we write on left hand side of this arrow, they are mostly aqueous. क्यों? उसको डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको पानी में डिसॉल्व करने के बाद रिएक्शन करते हैं। ऐसा क्यों? The reaction goes little bit faster. The reaction goes quickly and the reaction takes place easily. That is the reason. आप aqueous नहीं लोगे, सीधा HNO3 उसका जो लिक्विड फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, वो ले लेंगे, ठीक है, रिएक्शन इतना जल्दी नहीं होगा। I hope you are getting me. All right, children, understood? So these were two queries. I hope you got satisfactory answer to it. All right. Let's continue with chemical properties of acids. We had seen one, that is acid reacting with metal, okay, in the previous session. Now we start with second, then third, fourth and fifth. 5 chemical properties acids has, right? First, acid react with metal to produce salt and hydrogen gas. Second, acid reacts with metal oxide to produce salt and water. Third, acid reacts with metal hydroxide to produce salt and water. Metal hydroxide मतलब base, alkalis.
Fourth, acid reacts with metal carbonates to produce salt, water and carbon dioxide. And number 5, acid reacts with metal hydrogen carbonate, also called metal bicarbonate, to produce salt, water and carbon dioxide. So then let's see. So children, yes, नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको बहुत घमंड होता है कि वो सबको ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन कुछ मेटल वो ऑक्सीडेशन उसको करने नहीं देता है, सो वो NO प्रोड्यूस नहीं होता है, वाटर भी प्रोड्यूस नहीं होता है, सो ओनली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस आर प्रोड्यूस. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड to produce salt and water. All right? चलिए एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं. फर्स्ट लेट्स टेक HCl. All right? मैं टेक्स्ट बुक का ही लूंगा. ओके, सो आपको दिक्कत नहीं हो. H2SO4 दूसरा एसिड H2SO4. All right? और तीसरा एसिड HNO3. Now this acid, when you take them as reactant, they are dissolved in water, so वो aqueous form में ही होगा. Is that clear to you? अब इसका रिएक्शन हम मेटल्स के साथ कर, मेटल ऑक्साइड, नॉट मेटल, मेटल ऑक्साइड. पहला मेटल हम चूज करते हैं सोडियम, उसकी फॉर्मूला Na+1O-2 है ना. सोडियम और ऑक्साइड यहां है, सब सारे ऑक्साइड. ऑलराइट, सो Na2O, Na2O. ऑलराइट, कोई भी मेटल को बर्न करो, मतलब हीट करो, ऑलराइट, तो इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड फॉर्म एश, राख बनी जाए. सो दैट इज ऑलवेज सॉलिड, ये हमेशा सॉलिड होता है. एनी मेटल ऑक्साइड इज सॉलिड. नॉन मेटल ऑक्साइड सॉलिड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है. ऑलराइट, प्लस यहां कौन सा मेटल ले, यदि टेक्स्ट बुक का चुनना हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ये वाला पसंद किया. Mg+2, ऑक्साइड इज O-2, +2 - 2 वैलेंसी सेम, सो फॉर्मूला सीधी जुड़ जाएगी MgO. ये मेटल ऑक्साइड है, सो इट इज in solid state. All right, chaliye. And in the third example we are going to take calcium oxide, ये +2 वाला calcium, Ca+2O-2, सीधा ज्वाइन हो जाएगा CaO. Children, some children have habit of writing like this, CaO. O कैपिटल होना चाहिए, या Mg पूरा सिंबल मैग्नीशियम का है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल. Ca 2 लेटर है सिंबल में, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर ए. दैट शोज के ये Ca है और ये O है, यहां तीन चीज नहीं है. ऑलराइट, ओके, सो दैट्स इट. और ये भी मेटल ऑक्साइड है, सो इट विल बी इन सॉलिड स्टेट. ऑलराइट, चलिए अब रिएक्शन हो रहा है. फर्स्ट वन, चिल्ड्रन, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, और इसके नीचे इसका तो ऑलरेडी स्प्लिट हो गया है, यहां लिखा है. सो H+1 और Cl-1. अब ये क्रॉस बॉन्डिंग करेगा, करेक्ट. H2O, दैट इज द सेकेंड प्रोडक्ट, और लिक्विड, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी कभी गैसियस फॉर्म में भी होता है. ड्यूरिंग द रिएक्शन इफ हाई टेम्परेचर इज इवॉल्व्ड, तो ये वाटर लिक्विड स्टेट की जगह पे वेपर फॉर्म में भी हो सकता है, तब गैस लिखना पड़ेगा. ओके, चलो. और सॉल्ट कौन सा, Na+1 Cl-1, सो दैट इज NaCl. और यहां हमने सॉल्यूशन लिया और ये सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है, सो वो भी एक्वियस फॉर्म में ही मिलेगा. हो गई बात. नाउ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस. यस, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मुझे अभी ये दिखती है. सोडियम 2 या सोडियम 1 2 कर दो, क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 2 करने के लिए 2 कर दो, हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1,
Here also oxygen is 1. Now this chemical equation is complete with states written and balanced. Formula तो हमने पहले ही लिखा. Okay. Next one. इसको स्प्लिट करेंगे तो H+1 और SO4 -2. इसको स्प्लिट करेंगे Mg प्लस और O माइनस. वो पहले से स्प्लिट किया है तो उसके नीचे इसको लिख दो H+1 SO4 -2. क्रॉस करेंगे सो सॉल्ट +2 -2 सीधा MgSO4. ये सॉल्ट है सो डिसॉल्व फॉर्म में ही मिलेगा. सो एक्वियस प्लस दिस गिव्स यू वाटर H2O जो लिक्विड फॉर्म में. ये जो पानी है उसी में डिसॉल्व होगा. ऑलराइट. ओके. नाउ बैलेंसिंग. सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये लगती है या ये लगती है, जो भी लो ले लो. चलो ये ले लेते हैं. मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4n15 ऑक्सीजन 4n15, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2. So it is already a balanced chemical equation. So now this is complete equation. Okay. चलिए नेक्स्ट वन. इसको स्प्लिट करो H+1 NO3 -1. इसको स्प्लिट करो कैल्शियम +2 O -2 ऑलरेडी है. ये H+1 और NO3 -1. आप बोलेंगे ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वही सॉल्ट और वाटर, वो मेटल के साथ सॉल्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर देता है. बट विथ विच एग्जाम्पल? जिंक का एग्जाम्पल हमने लिया है. सो वही याद रखो. द बैलेंसिंग इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. डिड यू नो दैट 8 molecules of HNO3 reacts with zinc, 3 atoms of zinc. फिर आपको मिल जाएगा. चलिए फाइन. नाउ ये कैल्शियम नाइट्रेट Ca1 और NO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस, ये सॉल्ट है. और नेक्स्ट वाटर H2O, ये लिक्विड फॉर्म में. इसी पानी में ये डिसॉल्व फॉर्म में होगा. सो यू हैव टू राइट एक्वियस. ऑलराइट. नाउ बैलेंसिंग द इक्वेशन. सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला कैल्शियम नाइट्रेट की है. ऑलराइट. सो कैल्शियम 1, यहां भी 1, नाइट्रोजन बाहर 2SO2, यहां एक ही है. सो यू मे राइट 2. राइट. ऑक्सीजन 6, यहां ऑक्सीजन 6 और 1 7. छोड़ दो अभी उसको. ऑलराइट. ऑक्सीजन 6 और यहां भी एक है 7. ऑक्सीजन 6 और यहां भी एक है 7. हो गया. और हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 2 नाइट्रोजन, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1. सो नाउ इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. पहले ये मेथड से ट्राई करो, हो जाता है तो ठीक है, वरना you can employ other methods of balancing the equation. Okay, so here we saw examples of acid reacting with metal oxide from salt and water. Now third property, acid reacts with metal hydroxide. And what are metal hydroxides also called? Yes, they are called bases or alkalis. Correct? So here we are. Third property, acid plus metal hydroxide, also called base or alkali, gives salt and water. हमने वो हिंट वाली मेथड से मैंने दिखाया था कि कैसे मिलता है in the very first session. All right. Now I have taken those examples of textbook. पहला एसिड हमने लिया ये हाइड्रोजन क्लोराइड मन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकंड ये तो फिक्स रहेगा हाइड्रोजन सल्फेट. थर्ड हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड. फोर्थ हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड. और अगेन HCl. अब हमें चाहिए मेटल हाइड्रोक्साइड. द मोस्ट पॉपुलर मेटल हाइड्रोक्साइड इज सोडियम Na+1 OH -1. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड सीधा ज्वाइन होगा और वो भी पानी में डिसॉल्व करके देंगे. सो इट इज एक्वियस. ऑलराइट. चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड. एंड द सेकंड वन
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम और यहां से हाइड्रोक्साइड K+1 हाइड्रोक्साइड OH -1, सो सीधा ज्वाइन होगा KOH, उसको भी पानी में डिसॉल्व करके रिएक्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, इन द नेक्स्ट वन वी टेक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, so Ca+2OH -1, so Ca1OH twice, Ca1OH twice, this is base, पानी में डिसॉल्व करेंगे रिएक्शन के लिए, so aqueous form. Alright, in the next case again we take sodium hydroxide with the carbonic acid NaOH, aqueous. Alright, and in the last case children, एक different वाला, ये सारे मेटल्स है एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन एंड एमोनियम, लेकिन एमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, क्योंकि एमोनियम हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आयनाइजेशन के समय वन आयन प्रोड्यूस विल बी हाइड्रोक्साइड आयन, सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट इज अ बेस। नहीं तो हम समझते हैं कि जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वही बेस है। अगेन देयर इज वन एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड को वो एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एमोनियम NH+1 हाइड्रोक्साइड OH -1 सीधा ज्वाइन होगा NH4OH और वो उसको भी पानी में डिसॉल्व करके रिएक्शन के लिए लेंगे, सो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए चिल्ड्रन, वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डू स्प्लिट दिस H+1 Cl -1, H+1 Cl -1, कौन सा मिलेगा आपको? सोडियम क्लोराइड NaCl, वो सॉल्ट है डिसॉल्व फॉर्म में ही मिलेगा, प्लस वाटर HOH मत लिखना, H2O, और वो लिक्विड फॉर्म में। इसको स्प्लिट करो, H+1 और सल्फेट -1, H+1 और सल्फेट -2, ये तो ऑलरेडी मैंने स्प्लिट करके रखा है। अब सॉल्ट प्रोड्यूस होने वाला है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सो K2 तो लिखने की जरूरत नहीं है, SO4 इन एक्वियस फॉर्म, और HOH मतलब H2O इन लिक्विड फॉर्म। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ फिक्सी है वाटर, आप H2O लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी स्प्लिट है, ये H+1 और NO3 -1 +1 -1, कैल्शियम नाइट्रेट Ca1 NO3 ट्वाइस प्लस वाटर। ऑफ कोर्स ये एक्वियस फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। अगेन NOH, नाउ H+1 और CO3 -2, और ये Na+1 और OH -1 क्रॉस करो तो दैट इज वाटर, H2O इन लिक्विड फॉर्म, और द सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3, और ये एक्वियस फॉर्म में होगा। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्प्लिट करो H+1 और Cl -1, यहां लिख सकते हैं H+1 और Cl -1 क्योंकि ऑलरेडी स्प्लिट है। एमोनियम क्लोराइड, ये एमोनियम और क्लोराइड +1 -1 सीधा लिखो NH4Cl in aqueous form, plus that gives you water H2O in liquid form. So these are the chemical reactions. I'm not going to explain to you the balancing now. Can you do it or should we? Okay, let's have a little bit practice. चलिए, most complex formula seems to be this: Na1 O1 O1 H2, H यहां 1 और वहां 2 और H2, और सोडियम Cl1 so already balance। चलिए, ये K2 यहां K1 so 2 कर दो, so H2 और 2H 4 हो गया, 2 कर दो, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 2 और 4 6 सल्फर 1, so now this is balanced। ऑलराइट, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इसको ले लो, कैल्शियम 1, ये नाइट्रोजन 2, यहां 2 कर दो, सो नाइट्रोजन 2 हो गया, करेक्ट। नाउ ऑक्सीजन 6 and 1 7, ऑक्सीजन 2 3 6 और 2 8 हुआ, तो यहां 2 कर दोगे तो 6 और 2 8, हाइड्रोजन 2 और यहां 2, टोटली 4, 2 2 4, so now this is balanced। all right, the last two are not balancing, you can do yourselves, okay। So moving on to the next property, all right, and that is acid reacting with
metal carbonate. So here we are. Both the properties we are going to see together, fourth and fifth. Acid plus metal carbonate gives salt, water and carbon dioxide. Acid plus metal bicarbonate, yeah, you can call hydrogen carbonate, which produces salt, water and same carbon dioxide. Alright, चलिए HCl, यहाँ कौन सा मेटल कार्बोनेट लेंगे? कैल्शियम. कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ है. कैल्शियम Ca+2 और कार्बोनेट CO3-2. ये Ca+2 है, CO3-2. सो यहाँ प्लस CaCO3. ऑलराइट, इन सॉलिड स्टेट ये एक्वियस, क्योंकि डिसॉल्व करके रखेंगे ना, ये मेटल कार्बोनेट सॉल्ट है तो डिसॉल्व होगा. सो पानी में डाल के उसका इसके साथ रिएक्शन करेंगे. ऑलराइट, नाउ दिस, ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा लेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट. ये मैग्नीशियम, सो Mg+2 और कार्बोनेट CO3-2. सो MgCO3 सीधा ज्वाइन. यू कैन टेक एनी चिल्ड्रन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं. सो आई एम टेकिंग ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, सो दैट आपके वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाहर नहीं निकल आए. आना भी चाहिए, नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन ओके आप बोलेंगे मेरी शादी कर लो अभी, मुझे करना है, नहीं, वो टाइम आएगा तब होगी, है ना. ओके, चलिए नाउ सी, फाइन. और तीसरा, नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सा मेटल कार्बोनेट लोगे? तो पोटेशियम कार्बोनेट, ये वाला पोटेशियम. आई राइट हियर K+, K+1 और कार्बोनेट CO3-2. फॉर्मूला क्या होगी? K2CO3. सो हियर K2CO3 पानी में डाल के उसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे. राइट, नाउ इट्स टाइम टू राइट द, ओके, टू थिंग्स यू मे राइट चिल्ड्रन. H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. Children, two things you can write directly. Plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. आपको सिर्फ सॉल्ट लिखना है. तो अब HCl स्प्लिट करो, H+1 Cl-1. ये रहा आपका सॉल्ट. कैल्शियम क्लोराइड Ca1 Cl2, Ca1 और Cl2, और वो पानी में डिसॉल्व फॉर्म होगा, सो एक्वियस. ये वाटर है लिक्विड फॉर्म में और ये गैस है. ऑलराइट, समझ में आ गई बात. फिर आप बैलेंस कर सकते हो. नेक्स्ट, ये ऑलरेडी स्प्लिट है यहां, मैग्नीशियम और कार्बोनेट. इसको स्प्लिट करेंगे तो H+1 और सल्फेट SO2-2. सो सॉल्ट आपको मिलने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 +2-2, सीधा ज्वाइन कर दो, ये एक्वियस फॉर्म में. सेकंड प्रोडक्ट आपको पता ही है वाटर. थर्ड प्रोडक्ट, और वो लिक्विड स्टेट में. थर्ड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वो गैसियस स्टेट में. क्लियर टू यू? चलो नेक्स्ट, यहां K+ और कार्बोनेट CO3-2, इसका स्प्लिट करेंगे तो H+1 और NO3-1. KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ये एक्वियस फॉर्म में होंगे. सेकंड प्रोडक्ट यू नो वेरी वेल, इट्स वाटर. थर्ड प्रोडक्ट यू नो वेरी वेल, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. लिख दिया, ठीक है. This is how the reaction takes place. Now let's write this. इसका लिखे. फाइन, पहले तो हमें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये लेना होगा. मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ऑलराइट, पहला वाला वही जो यहां लिया वो. ओके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम. ऑलराइट, कहां लिखेंगे अब? यहां लिखता हूं. सोडियम Na+1 और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1 है, सीधा ज्वाइन होगा. सो NaHCO3, उसको पानी में डिसॉल्व करके एक्वियस फॉर्म बना लेंगे. राइट, नेक्स्ट चिल्ड्रन, एसिड अलग है, सब में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही लेंगे. ऑलराइट,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यू कैन चेंज इवन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो फिजिबल है कि नहीं। चलिए इसको स्प्लिट करो और यहां लिखो नीचे H+1 क्लोराइड -1। आपको सॉल्ट मिल गया NaCl और वो एक्वियस फॉर्म में होगा डिसॉल्व। दूसरा आपको पता ही है पानी लिक्विड फॉर्म। तीसरा आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, वो यहां ये कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड और ये दोनों हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट में Na+1 CO3 -2, सॉरी HCO3 -1 है और इसको स्प्लिट करेंगे तो H+1 और सल्फेट SO4 -2। सो सॉल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 in aqueous form plus water in liquid form plus carbon dioxide in gaseous form। करेक्ट। यहां Na+1 और HCO3 -1 ऐसे स्प्लिट होगा ना। ओके, और ये स्प्लिट H+1 और NO3 -1 सोडियम नाइट्रेट +1 -1 सीधा ज्वाइन NaNO3 in aqueous form। फिर सेकंड प्रोडक्ट इज वाटर इन लिक्विड फॉर्म एंड थर्ड प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म। ऑलराइट, मैं चिल्ड्रन यहां प्रोडक्ट सेम है, देखो ये ऑलराइट। ओके, मैं जरा चेंज कर देता हूं। यहां आई टेक सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम और ये कार्बोनेट। सो Na+1 और CO3 -2। सो Na2CO3 पानी में डाल के एक्वेस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके नीचे ये H+1 और Cl -1 NaCl। कौन सा सॉल्ट मिलेगा? NaCl और एक्वियस फॉर्म में, देखा। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलता ही है। चिल्ड्रन अभी ये इक्वेशन देखो, ये और ये, यहां सेकंड रिएक्टेंट इज सोडियम कार्बोनेट and here the second reactant is sodium hydrogen carbonate, but still the product NaCl NaCl H2O H2O CO2 CO2 सेम है, लेकिन बैलेंसिंग अलग होगा। सो लेट अस सी दैट। बैलेंसिंग देखते हैं। चलिए, सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये लगती है Na2, ये N1 2 कर दो, कार्बन 1 ओके, क्लोरीन यहां 2 है, सो यहां 2 कर दो क्लोरीन, हाइड्रोजन 2, यहां हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 और 2 3, ऑक्सीजन 3। नाउ दिस इज बैलेंस। यहां बैलेंसिंग डिफरेंट होगा चिल्ड्रन, जस्ट वॉच आउट। देखो सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये लगती है Na1 C1 H 1 और 1 2 H2 O3 1 और 2 3। so this is already balanced, तो आप देख सकते हैं here 2 molecules of hydrochloric acid है, here there is only 1 molecule of hydrochloric acid, here 1 molecule of sodium carbonate and 1 molecule of sodium hydrogen carbonate, but here 2 molecules of sodium chloride is produced and here 1 molecule of sodium chloride. Yes, the rest are same, so balancing different है। Is that clear to you? The rest too you can balance yourselves. Okay children? So children, we have just seen the chemical properties of acids and we shall conclude this session with chemical properties of bases. Alright? Remember our chapter is acids, bases and salts. Chemical properties of acids we have just seen. Now chemical properties of bases. Only 3 properties are there. Base react with acid. That is one of the property of acid only. Acid reacts with base, producing salt and water. Then base reacting with non-metal oxide. हमने acid reacts with metal oxide to produce salt and water. Acid की जगह पे base है, metal oxide की जगह पे non-metal oxide है. Result is same. You are getting salt plus water. याद रखना children. All right? Okay? And the third, base reacting with some metal. Say, look here. Base is not reacting with all metals, only with some metals. All right? So base reacting with what? Metal. Acid होता तो acid reacts with metal to produce
salt and hydrogen. So same, salt and hydrogen gas. All right, hydrogen. All right, okay. Now these equations are not going to be as easy as we have seen in acid properties. All right, ये थोड़ा सा difficult होगा because of पहले कोवेलेंट कंपाउंड, फिर वो आयन एंड देन आयनिक कंपाउंड. डबल बॉन्ड्स हो, नॉट डबल बट दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल में. सो आसान नहीं रहेगा. चलिए ये एक ही एग्जांपल में ले लेता हूं. बेस, ये सोडियम और हाइड्रोक्साइड, Na+1 और OH -1. सो NaOH, उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे. एसिड, द बेस्ट एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, H+1 Cl -1. So HCl, सीधा join, and this is also aqueous. Yes, this will be the salt produced, NaCl. Salt है वो पानी में डिसॉल्व रहेगा और this will give me water plus H2O which is in liquid state. बैलेंस करते हैं. सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये, सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन. सो इट इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ऑलराइट, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. ओनली वन, यू कैन टेक नंबर ऑफ एग्जांपल्स वेयर बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब थोड़ा काम टफ होने वाला है. वेल, बेस में दो चूज किए मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2, हाइड्रोक्साइड OH -1. सो आपको वो फॉर्मूला मिली, CaOH ट्वाइस होना चाहिए, ट्वाइस है यहां. आई राइट इन ब्लैक, दैट इज द फॉर्मूला. देखो गलत लिखा था सर ने. ओके, नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम, हियर इट इज Na+1, हाइड्रोक्साइड OH -1. ऑलराइट, अब इंटरेस्टिंग थिंग, किसके साथ रिएक्ट करोगे? नॉन मेटल ऑक्साइड. कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस है, ये एक्वियस फॉर्म है. ऑलराइट, उसका रिएक्शन क्या होगा? दूसरा, ये एक्वियस है बेस. आई एम गोइंग टू टेक सल्फर, नॉन मेटल सल्फर, और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये आपको लर्न करना होगा चिल्ड्रन. ये जो इक्वेशन है इंपॉर्टेंट है, बार बार उसकी स्टडी करो. ऑलराइट, बिकॉज यू डोंट गेट देम इजीली, लाइक हाउ वी गॉट इन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. ओके, चलिए अब देखिए, इसका स्प्लिट करते हैं तो ये दो मिला. अभी ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला कौन सा? कार्बोनेट. सो सीधा इससे बनेगा कार्बोनेट, और नेगेटिव है तो यहां लिखू CO3 -2. ये थोड़ा अलग है, करेक्ट. रफली यू विल गेट हिंट फ्रॉम हियर कि C और O है तो वो कार्बोनेट फॉर्म होगा. तो ये रहा आपका सॉल्ट, +2 -2 सीधा जॉइंट, CaCO3, और वो सॉल्ट है सो डिसॉल्व फॉर्म एक्वियस, और ये आपको H और O पानी देगा, H2O इन लिक्विड फॉर्म. इज दैट क्लियर टू यू? सो इतना आसान नहीं है. चलिए नेक्स्ट, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस, सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज अ नॉन मेटल, डाइऑक्साइड भी होता है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है. सो आपको ध्यान में रखना है कौन सा लेना है. दैट्स व्हाई आई सेड दे आर इंपॉर्टेंट. बार बार देखना होगा और याद रखना होगा. चलिए स्प्लिट करो. सो यू गेट सोडियम और हाइड्रोक्साइड, वो तो ऑलरेडी है. अब ये SO3 वो कौन सा देगा? सल्फेट, और वो नेगेटिव आयन, सो नेगेटिव के नीचे लिखो SO4 -2. ये रहा आपका सॉल्ट Na2SO4, correct, in aqueous form, plus yes, this is going to give me water, hydrogen and oxygen in liquid form. I hope you have understood children. थोड़ा सा slightly tough है. So we move on to the third property, that is base reacting with some metal. Children, याद करो, acid reacting with metal produces salt and hydrogen gas, और वो नाइट्रिक एसिड जो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक केस में नाइट्रिक ऑक्साइड देता है,
लेकिन यहां एसिड नहीं है, बेस और मेटल ही है, लेकिन सब मेटल्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस ले लिया मैंने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको स्प्लिट करेंगे तो Na+1 और OH-1, करेक्ट? ओके, वो एक्वियस फॉर्म में है। कौन सा मेटल ले ले चिल्ड्रन? विच मेटल शुड वी टेक? जिंक, मिडिल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, और ये भी एक्वियस है। यहां कौन सा मेटल ले ले? एल्यूमिनियम। मेटल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। मेटल ऑक्साइड होता तो भी सॉलिड फॉर्म। नॉन मेटल, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस वो सॉलिड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वो गैस है, और ब्रोमीन लिक्विड है। एनीवे, व्हाट यू विल गेट चिल्ड्रन, ये टफ पार्ट है। यहां जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ये जिंकेट। ये ऑक्सीजन और जिंक कोवेलेंटली बॉन्ड होते हैं, शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, और ZnO2 फॉर्म करते हैं, लेकिन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव भी करते हैं, सो इट बिकम्स -2। तो इसको कहते हैं जिंकेट। जैसे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, नाइट्रेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, वैसे इसको कहते हैं जिंकेट। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन पहले शेयर करके कोवेलेंटली बॉन्ड हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया, ऑलराइट। यहां नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्ड हुए और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो डोनेट कर दिया, तो वो पॉजिटिव आयन बना। सो वैसे जिंकेट हमारे लिस्ट में नहीं है, तो ये 2 को अलग तरीके से याद रखना होगा। सर वो लिस्ट में क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये जिंकेट अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग फॉर्म बनाता है, दैट्स व्हाई। तो जिंक के साथ जो जिंकेट है वो -2, ZnO2 -2 है। चलिए, कौन सा मेटल यहां है? सोडियम, ऑलराइट, ये रहा सोडियम, और हाइड्रोक्साइड, उसको स्प्लिट किया, और जिंक ऑक्सीजन के साथ जिंकेट फॉर्म होगा, और उसको नेगेटिव आयन है। फॉर्मूला क्या है? ZnO2 -2। चलिए, ये रहा, आपको सॉल्ट मिलेगा Na2 और ZnO2 ओनली 1 टाइम, सो Na2 ZnO2 प्लस आपको हाइड्रोजन मिलने वाला है, सो H2। ये गैस है और ये एक्वियस फॉर्म है। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, इसको KOH, K+1 और OH-1। चिल्ड्रन, ये एल्यूमिनियम पूरा OH के साथ रिएक्ट करता है और इट गिव्स एल्यूमिनेट। पहले एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एल्यूमिनियम के साथ, और AlOH 4 टाइम्स देते हैं, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, फिर भी तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 वैलेंसी। सो दिस इज एल्यूमिनेट। वंस अगेन आपको यहां याद रखना है, इसमें नहीं लिखा है क्योंकि डिफरेंट मेटल के साथ डिफरेंट फॉर्मूला बन जाएगी। ये एल्यूमिनियम के साथ है तो उसकी फॉर्मूला, जिंक के साथ है तो जिंकेट की फॉर्मूला, ऑलराइट। यहां पोटेशियम तो पोटेशियम केट वो अलग हो जाएगा, ऑलराइट। सोडियम तो सोडियम केट अलग हो जाएगा। ओके, यहां एल्यूमिनेट -1 है तो नेगेटिव आयन में AlOH 4 टाइम्स -1। ये रहा आपका फॉर्मूला सॉल्ट, K+1 -1 सीधा ज्वाइन कर दो, KAlOH 4 टाइम्स प्लस हाइड्रोजन, ये गैस होगा और ये एक्वियस होगा, ऑलराइट। बैलेंसिंग, ओके, ये बैलेंसिंग हम लोग करते हैं, हाँ? ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला Na2 यहां 1 है, सो 2 लिख दो, जिंक 1 O2 2O, हाइड्रोजन 2H, बैलेंस हो गया, दैट्स इट। चलो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ये है, पोटेशियम 1 एल्यूमिनियम 1 O4, यहां O4 नहीं है तो 4 करना पड़ेगा, है ना चिल्ड्रन? चलो, H4 और 2 6, सो यहां 4 है और 6, so this balancing is going to become difficult children. Okay, yes, this reaction is not feasible. Balancing नहीं हो रहा है ना children, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे जल्दी पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं होने वाला है, ओके।
द रीजन, यहां रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो फिर कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी भी डालना पड़ेगा लिक्विड फॉर्म में, तभी रिएक्शन होके ये देगा. नाउ यू कैन बैलेंस. ऑलराइट, चलो पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 1, हाइड्रोजन 1 और 2 3, यहां 4 और 6 है ना. चलो दूसरे को बैलेंस करो. ऑक्सीजन 4, यहां ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, सो लिखो 4 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 4, उसकी वजह से हाइड्रोजन 2 हो गया, 4 हो गया, 4 and 2 6, यहां भी H4 और 2 6 बैलेंस हो गए. एल्यूमिनियम 1 पोटेशियम 4, या पोटेशियम को 4 करना पड़ेगा, है ना चिल्ड्रन, पोटेशियम को 4 करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स अ डिफिकल्ट वन, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. तो अब उस ये 4 तो पोटेशियम 4 करना पड़ेगा, तो यहां 4 करो तो एल्यूमिनियम बदल जाएगा, इसको 4 करो, सब 1 by 1 अलग हो जाएंगे. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. देन द बेस्ट मेथड मैंने जो बताई वो हम करते हैं. लेट्स सी. हाँ, वो बहुत लेंदी है और ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बट दैट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव. क्यों? क्योंकि आप उस रास्ते से चलेंगे तो आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे. राइट, वहां आप पहुंचेंगे. डेस्टिनेशन इज फॉर श्योर. ओके, चलो आई राइट दैट. KOH प्लस एल्यूमिनियम, ये एक्वियस, ये सॉलिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O लिक्विड गिव्स पोटेशियम एल्यूमिनेट KAlOH 4 times और प्लस हाइड्रोजन. What I do? A molecules of potassium hydroxide reacts with B atoms of aluminium and C molecules of H2O, producing X molecules of potassium aluminate and Y molecules of hydrogen. चलो लेफ्ट हैंड साइड पर K कितने हैं? K की बारी, पहले सिर्फ K को देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पर K 1 into A और राइट हैंड साइड पर K 1 into X. सो A इक्वल टू X. अब बात एल्यूमिनियम की करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम कितना है? B. ऑलराइट, राइट हैंड साइड पे एल्यूमिनियम कितना है? X. सो B इक्वल टू X. वाह, जल्दी मिल रहा है. A इक्वल टू B इक्वल टू X मिल गया. चलिए अब बारी हाइड्रोजन की ले लेते हैं. चलो हाइड्रोजन यहां 1 into A, यहां भी है 2 into C, 2C. सो यहां A यहां 2C, सो टोटल. और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितना है? 4 और 4X. सो दैट इज 4X प्लस 2Y. ऑलराइट, अब बारी ऑक्सीजन की. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन A और यहां 1 into C, सो A प्लस C. राइट हैंड साइड पे गुड, एक ही फॉर्मूला में है. दिस इज 4 into X, सो दैट इज 4X. ऑलराइट चिल्ड्रन, ओके, कुछ करते हैं. क्या करते हैं? 4x की वैल्यू यहां डाल देते हैं. सो A प्लस 2C इज इक्वल, व्हाट इज 4x? A प्लस C और आगे प्लस 2y. A कैंसल, माय गॉड. 2C माइनस C इक्वल टू 2y. सो यहां से आपको क्या मिला? A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू X मिला ना. A इक्वल टू B इक्वल टू X. अभी ये y है ना, C और y, इसमें C और y अभी भी इन्वॉल्व नहीं है. चलिए C इक्वल टू 2y यहां लिख दो. C इक्वल टू 2y लिख दो. सो A प्लस C की जगह पे 2y इज इक्वल टू 4x. ऑलराइट, और A इक्वल टू x लिख दो. करेक्ट, A इक्वल टू x. सो ये A की जगह पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x. ये x उधर गया, 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 1x 3x. सो 2y इज इक्वल टू 3x. देखो यहां 3x चाहिए ना मुझे, so I'll multiply everything by 3. So 3a equal to 3b equal to 3x and 3x is equal to 2y और 2y is equal to c. है ना, हो गया. लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है ये लाना. ऑलराइट, चलिए और आगे देखते हैं. ओके,
अब इसका कोएफिशिएंट 3, 3, 3, 2 और यहां 1, तो एलसीएम निकालोगे तो 6, सो 3a डिवाइड बाई 6. फिर b वाला लिखता हूं 3b डिवाइड बाई 6. c वाला दैट इज c अपॉन 6, दैट x 3x अपॉन 6 एंड देन y 2y अपॉन 6. कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा. दिस गिव्स मी a इक्वल टू 2. ये a आपका 2 है. b इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो 2. c इज इक्वल टू 6, दिस इज 6. x इक्वल टू 2, ये x 2 और y इज इक्वल टू 3, ये 3. अब आप चेक कर लो, देख लेना, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. So you can say 2 molecules of potassium hydroxide reacts with 2 atoms of aluminum and 6 molecules of water to produce 2 molecules of potassium aluminate and 3 molecules of hydrogen. ये molecule है. All right. So that's all in this session. Goodbye.